it's like a ritual. It's very disappointing, disturbed. I was thinking that nature of the economy is already weak. तो आप देख सकते हो उसमें फिस्कल लाइबिलिटीज इतना हाई है 37%. और जो आपको जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो जो उसमें यू कैन सी टैक्स रिसिप्ट वाला जो है ना रेवेन्यू रिसिप्ट में या जो एक्सपेंडिचर में देख लो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 61%. उसी से 45% तो यही है सैलरी और पेंशन में चला जाता है. उसमें डेवलपमेंट क्या है क्या होगा. तो बेसिक इकोनॉमी जो है इट इन इटसेल्फ इज ऑलरेडी अ वेरी वीक इकोनॉमी एंड दैट स्टेट. उसके ऊपर क्राइसिस था. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि सो इट गेट्स अफेक्टेड. ऑलरेडी इकोनॉमी इज अ वेरी बैड इकोनॉमी वेरी वेरी वीक इकोनॉमी and over and above that you have the crisis. So crisis induced element there, and we have the highest inflation rate, one of the highest unemployment rate in the country. So you expect ek to कि this budget, does it reflect anything to improve the state of the economy in general sense? You don't get it. Over and above that, जो crisis में did you respond? Nothing of that kind. So I remember, say for example, in the national budget, there are 11,500 crores given to Bihar for flood. Then the budget also mentioned about Assam and Himachal that they will take care of it. Manipur is a ritual. Abhi dekh lo May, June, July mein, even the Raj Bhavan was inundated. Then nothing of that kind is given. IDP, 60,000 people. How that economy is going to handle that without? So I told them this is not big institution. This is the responsibility of the government of India because we are part of it. So this makes me feel very sad. It's the same exclusions. Prime Minister not visiting. So today to मैंने बोल दिया उसको. It doesn't matter whether he visit or not. Initially I was hurt. देश का प्रधानमंत्री है भाई जाना चाहिए. Initially 2023 में तो I felt hurt that he didn't show this interest, but now I am indifferent. जाए या ना जाए जरूरत नहीं है ऐसे. लेकिन देश को पता होना चाहिए कि वीज़ा मामला इशू नहीं है. मणिपुर नहीं जाने का जो इशू है वीज़ा की इशू नहीं है ना. वो बोल दिया मैंने फ्लोर में अभी. तो एक्सक्लूजन है ये एक तरह का जो रिचुअल इनसिग्निफिकेंट कंटेम्पचुअस टू आवर पेन ये लगता है मुझे. सेम एक्सक्लूजन मेरा क्वेश्चन भी आज सुबह एक्सक्लूड किया गया. बैलोट में एक आया था क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन था. अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन आई वाज आस्किंग अबाउट the groups with which the government of India has agreement, renewal है या नहीं. वो सेलेक्ट किया गया बैलोट में. तो मेरा नाम था 16 में. There was in the 16th, and the moment the question was released, mine was removed. I wrote a letter to the Secretary General. जवाब ही नहीं आया. This is जबरदस्त. This is a contemptuous attitude towards a sitting member of parliament. कम से कम reason तो देना चाहिए ना. ये हो रहा है. This is the biggest temple of our democracy, right? And I am an elected member. यूपी का MP भी MP हूँ, तमिलनाडु के MP भी MP हूँ, मैं भी MP हूँ, है ना. तो मैंने जो इसको हम लोग कहते हैं ओवरसाइट फंक्शन, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट फंक्शन, उसी का हिस्सा है क्वेश्चन पूछना. एग्जीक्यूटिव को सवाल पूछना इज आवर राइट एंड इज आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इलेक्टेड मेंबर. तो सवाल पूछा गया. स्टार्ट क्वेश्चन है. क्या था आपका? ये जो आर्म ग्रुप्स है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में किस किस स्टेट में किसके साथ आपके साथ एग्रीमेंट है. तो उसका डिटेल चाहिए मुझे. और रिन्यू किया तो कब किया कैसे किया. क्योंकि अभी तक मणिपुर में जो कुकी का सू ग्रुप है वी डोंट नो वेदर देयर इज एन एग्रीमेंट विद दैट. इज अ डी फैक्टो. They are grooming. Lot of people have been accusing this group as used by Indian Army. Very renowned journalists and observers have written books and academic papers on this, newspaper article to Choro. So I was trying to figure it out since we don't know whether this Sioux group of the Kukis who were accused of being involved in this crisis, उसके साथ भारत सरकार के साथ कुछ agreement है या नहीं. I wanted to know, not only my state but other state में भी notice. तो ये क्वेश्चन गायब हो गया सडनली. एंड देन ओवर एंड अबव दैट आई रोट अ लेटर टू द जनरल सेक्रेटरी जनरल on 6th of March
ये मेरा नाम बैलोट में आया था. How come that it disappeared from the question list? आज था, आज का सुबह का था. तो आप उसका रीजन दे दो. जवाब ही नहीं आया. नो आंसर. दैट मीन्स व्हाट? आप जो भी कर लो, वी डोंट केयर. लगता है ना इंस्टीट्यूशनल. दिस इज अनएक्सेप्टेबल. आई विल बी राइटिंग अगेन. यू नो, this is a sad day. जो बजट इज सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ इनसिग्निफिकेंट. मणिपुर क्या है काइंड ऑफ थिंग. यू नो, ये क्या किया जाए. प्रेसिडेंशियल रूल पे भी चर्चा है. हाँ, ये वी हैव. कल भी है प्रेसिडेंट रूल भी. अजीब प्रेसिडेंट रूल है ये भी, है ना. ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया इसके लिए प्रेसिडेंट रूल लगा रहे. वही तो नहीं है ना. वो तो बहुत पहले के हो चुका था. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था ना, देयर इज अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. बहुत पहले बोल चुका था ये. इसकी वजह से प्रेसिडेंट नहीं लगा है रूल ये. और ये भी नहीं कि बीजेपी हैज लॉस्ट देयर मेजॉरिटी, यू नो, फैक्शन हो गया. वो नहीं है ना. अजीब रीजन है. दे वर ट्राइंग टू सेव देयर ओन एम्बैरसमेंट बिकॉज दे वुड हैव लॉस्ट अ कॉन्फिडेंस वोट. ये भी हो सकता है. एंड इट्स अजीब है. दे आर लीडर्स, यू नो, दे हैव इनवाइटेड. आई मीन इट्स वेरी. सोसाइटी को इतना पोलराइज किया गया 21 मंथ्स में. This government is, I don't know, but now I'm just praying that they have some sense and do the needful to correct these mistakes now. That's my hope.